मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? Yes, हाँ दिखाई। प्रेजेंटेशन का दिख रहा है? हाँ दिखाई। So these are the main contents of my presentation today. We'll have a brief overview of the BIS hallmarking scheme, and we will touch upon the process of registration of jewelers and process of recognition of assaying and hallmarking centers. So that will be the content of the presentation today. So first of all, we'll start what do we mean by hallmarking. So hallmarking is accurate determination of official recording of the proportionate content of precious metal in precious metal articles. So how much actual amount of precious metal is present in the precious metal article? Like if a gold is there, as we all know, gold pure will not be there. It will be gold alloy. So what is the percentage of gold in gold alloy? That is what is known as accurate determination of gold in the gold alloy. And official recording. There is a recording of the actual value we are getting. So that comes in the accurate determination official recording of proportional content. That is known as hallmarking. So hallmarks are the official marks used in many countries. Hallmarking can be done on precious metal articles. Precious metals are gold, silver, platinum, and palladium. But at present, the BIS scheme is only for gold and silver. We have not yet started for platinum and palladium. So how it started? This started in way back in 1999 when RBI Standing Committee on Precious Metal they identified that we should start standardization and marking of gold jewelry. And for this process, they identified that BIS should take up this responsibility of standardization and marking of the gold jewelry. So BIS was advised to take up the hallmarking of gold. It started with the hallmarking of gold, and this scheme was launched in 2000, April 2000. So this is how the scheme progressed. For gold jewelry, as I told you, the scheme was launched in April 2000. Then the gold medallions, it was started in September 2005. Silver jewelry artifacts, the scheme started in October 2005. And for gold bullion, it started in October 2015. So that is how the scheme has progressed through this last 20 years. So what are the main objectives of hallmarking? So hallmarking, as we know, is both it protects both consumer also and benefit to jeweler also. How it protects consumer is very clear. The consumer gets value for the money. Whatever actual purity of the material he is getting, he is paying for that purity. So that is why he is ensuring value for the money for the consumer. And also it provides a third party insurance. Like BIS is the third party here, and the consumer between the consumer and jeweler, BIS is the third party, and they provide the assurance that whatever purity is marked on the hallmark article, the consumers are getting the same purity. Now, what are the benefits to jewelers? The jewelers, it helps to keep a check on the supply quality because many of the jewelers, they don't manufacture the jewelry themselves. They purchase it from the karigars. Now, whatever jewelry they're getting from the karigar, they can get it tested first. This tested jewelry, then it can be revealed whether the purity which is being supplied by the karigars is of the requisite quality or not. So it helps to keep a check on the supply quality, and the jeweler's name is also increased that this jeweler is a very quality conscious jeweler, and he sells only the material which is of proper quality, and the reputation of the jeweler increases. So this was when we started in 2001. There was a market survey of non-hallmark gold jewelry. So this was done in 2001 and 2006. So in 2001, this market survey was conducted in 8 cities, and we collected about 120 samples. Out of this, 89% of the samples were found to be failing, and average shortage in purity was 11%, whereas the highest purity shortage was about 38.6%. So that was the statistics of the samples we took in 2001. And we again repeated this exercise in 2006. Again, we found this was on the non-hallmark gold jewelry. Again, we found that 90% of the samples were found failing. The average purity shortage was about 13.5, and the highest purity shortage was about 44.6. So there was a lot of samples were found to be failing as against the marked purity. So standardization gold has two aspects. Like BIS is operating the scheme for gold refining sector also and for gold jewelry also. So we'll cover both these aspects in this presentation today.
Now these are the standards. As we know, as you know, this Bureau of Indian Standards, the national standards body of India, and our main job is formulation of standards. So these standards for formulation of standard, there are different technical committees. In this, there is one technical committee, MTD10, which comes in under metallurgical technical division, and this committee is responsible for formulation of standards on precious metals. So these are the product standards which have been formulated. IS 1417, that is for gold and gold alloy jewelry and artifacts, fineness and marking, and IS 2112 is for silver and silver alloys. So both these standards, IS 1417, 2112, they are aligned with the ISO standards 9202. As you might be aware, ISO is International Organization of Standards, which forms international standards, and our Indian standards are aligned with the standards of international standards also. Similarly, there are two standards, IS 1412, 1418 and 2113, which are correspondingly giving the test methods for gold jewelry and for silver assaying. Again, both these test method standards are also aligned with the ISO standards. So whatever method we are following in India for testing of gold jewelry or silver jewelry, same method is being used anywhere in the world for testing. So at present, under the this IS 1417, these three caratages are covered: 14, 18, and 22 carats. As you might be aware, 22 carat is 916 ppt. So how this 916 ppt comes? It is very easy. Like 24 carats gold is considered to be the most pure, and if we divide 22 by 24 and multiply by 1000, then we get 916. So that is how this fineness is found out. At present, the Indian standard 1417 covers 3 carats, 14, 18, and 22 carats, and the gold jewelry and artifacts can be marked only with these three purities, 14, 18, and 22 carats. In this, whatever fineness is mentioned in 916, 750, 585, no negative tolerance is permitted on the gold content. Like if when this material is being tested in the assaying centers, even 916 comes up to be 915.8 or 915.9, then it will not be marked as 916. Any negative purity. संजीव सर एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा हिंदी भी रखिए सर, क्योंकि हिंदी बोलूं? हाँ सर, थोड़ा सा हिंदी में भी बोलिए, क्योंकि टोटल इंग्लिश में आप बोलने लगे हैं तो कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है, काफी लोगों को। नहीं, बिकॉज यू सेड ना कि आप इंग्लिश में कंटिन्यू तो नहीं सर, मैंने जरूर रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं 100% नहीं कि थोड़ा हिंदी में भी लिखे। सर कॉम्बिनेशन ऑफ 50-50% जैसे आप बताइए, क्योंकि क्या करें, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है लोग, तो साउथ वाले इंग्लिश समझते हैं और नॉर्थ वाले हिंदी। तो मैडम ऐसा व्हाट आई प्रपोज कि बिकॉज मेरा प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में है ही, if I speak in Hindi, then I think it will be covering both, दोनों ही कवर हो जाएंगे। क्या है? नो प्रॉब्लम। तो हमारे जो ग्रेड्स कवर्ड है, जैसे 3 ग्रेड कवर्ड है अब IS 1417 में, 14, 18 एंड 22 कैरेट्स। तो इन्हीं 3 कैरेटेज की ज्वेलरी बनाई जा सकती है, गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट, जिस पे हॉलमार्क किया जा सकता है। और जो भी हमारी कैरेटेज स्पेसिफाइड है, उसमें जो भी फाइनेंस है, उसमें कोई भी नेगेटिव टॉलरेंस परमिटेड नहीं है। जितनी भी फाइनेंस स्पेसिफाइड है 750, 585, उसी फाइनेंस के अगर ऊपर टेस्टिंग में आएगा तभी उस पर हॉलमार्किंग की जाएगी, अन्यथा उस पर हॉलमार्किंग नहीं की जाएगी। इसमें अगर हॉलमार्क ज्वेलरी आर्टिफैक्ट जो बन जाते हैं, उसमें हमने टॉलरेंस दिया हुआ है मैक्सिमम 2 ppt का, लेकिन वो तब है जब हम आपकी हॉलमार्क ज्वेलरी BIS के ऑडिटर आके मार्केट से खरीदते हैं, रीटेस्टिंग उसकी करते हैं। फर्स्ट टाइम टेस्टिंग पे कोई नेगेटिव टॉलरेंस नहीं है, सेकंड टाइम टेस्टिंग में उसमें 2 ppt का टॉलरेंस परमिटेड है। तो जो आपने हॉलमार्क ज्वेलरी आप लोग ने सबने देखी होगी, उसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है BIS का लोगो होता है, जो कि एक ट्रायंगुलर निशान होगा, और उसके बाद में प्योरिटी होगी, जो कैरेट और फाइननेस में दोनों दी जाती है। पहले हम लोग सिर्फ फाइननेस लिखते थे, जैसे 916, लेकिन बाद में ऐसा पता लगा कि कई लोग को पता नहीं है, कॉमन कंज्यूमर को, कि 916 क्या है। उससे कॉमन कंज्यूमर्स कई बार मिसलीड होते थे। इसके लिए डिसाइड किया कि इसके साथ में हम कैरेटेज भी लिखेंगे। तो अब 22K और 916 दोनों लिखा जाता है, ताकि कॉमन कंज्यूमर को भी पता लग जाए कितने कैरेटेज की प्योरिटी है इस ज्वेलरी की।
थर्ड मार्क जो आता है वो एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का मार्क आता है, जहाँ पे प्योरिटी टेस्ट की जाए, जहाँ पे ज्वेलरी टेस्ट की गई है। और चौथा मार्क जो आता है वो ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो ये चारों मार्क्स कंबाइन करके हॉलमार्क माना जाता है। ये जो मार्किंग की जाती है ये लेजर से की जाती है, और लेजर मार्किंग ही मान्य मानी जाती है। ये एक ज्वेलरी में भी आप देख सकते हैं, इतना डिस्टेंस पे नहीं होता है, ये खाली पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाया है कि इस टाइप से 4 मार्किंग होती है। एक्चुअल में जो हॉलमार्क होगा वो आपका इस टाइप से दिखाई देगा, जो कि बहुत ही छोटा होगा। और इसको आपको अगर छोटी ज्वेलरी है तो आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस के साथ में इसको देखना पड़ेगा। इस टाइप से अगर जो पंचिस से जो मार्क किया जाता है वो हॉलमार्क नहीं गिनाया जाता। जो लेजर मार्किंग करते हैं वही हॉलमार्क मान्य होता है। अभी जैसे हमने गोल्ड के बारे में कवर किया, उसी टाइप से सिल्वर के भी हमारा जो स्टैंडर्ड है IS 2112, इसमें भी सिल्वर्स के अलग अलग ग्रेड्स हैं जो कि परमिटेड है। जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स में 990 से 800 PPT तक की सिल्वर ज्वेलरी परमिटेड है। इसमें भी हमारी कोई नेगेटिव टॉलरेंस नहीं है, जो भी सिल्वर कंटेंट है सिल्वर ज्वेलरी पे उसी पे मार्किंग की जाती है। अब हमारी हॉलमार्किंग स्कीम का ऑपरेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, इसमें दो मेन जो हमारे पिलर्स हैं हॉलमार्किंग स्कीम के, एक है ज्वेलर्स और दूसरे हैं एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स। तो हमारी जो स्कीम ऑपरेट होती है, हम हर ज्वेलर जो भी हॉलमार्किंग की स्कीम में, क्योंकि अभी तक तो ये वॉलंटरी है, तो वो उसको BIS के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है एज पर IS 1417, अगर वो गोल्ड ज्वेलरी बेच रहा है। और अगर वो सिल्वर ज्वेलरी बेच रहा है तो वो IS 2112 के हिसाब से BIS के पास में रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको अगले प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। और इसमें ये जो ज्वेलर को जो लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन की जाती है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। इस प्रोसेस में जो है ज्वेलर के पास जितनी भी ज्वेलरी ज्वेलर लेता है वो अपनी खुद से मार्किंग नहीं कर सकता उस पे। उसको मार्किंग करने के लिए वो जितनी भी ज्वेलरी है वो जो BIS के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में है, सारी की सारी ज्वेलरी उसको वहां पे भेजनी पड़ती है। और एक जो फीस है हॉलमार्किंग सेंटर्स को, वो पर आर्टिकल उसको वहां पे देनी पड़ती है, जो कि 35 रुपीज पर आर्टिकल है गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए 25 रुपीज पर आर्टिकल। तो इस ये अमाउंट उनको ज्वेलर्स को एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर को पर आर्टिकल देना पड़ता है, और अपनी सारी की सारी ज्वेलरी एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर में भेजनी पड़ती है। एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर से ज्वेलरी टेस्ट होके हॉलमार्क लग के वापस ज्वेलर के पास आ जाती है। उसके बाद में वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है। तो ये पहला पार्ट, जो पहला पिलर जो है हमारी हॉलमार्किंग स्कीम का, वो है ज्वेलर। और दूसरा जो पार्ट है वो एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर है। एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर एक IS है, IS 15820, उसके हिसाब से BIS की रिकॉग्निशन इनको दी जाती है एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर्स को, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहती है। इसके बारे में भी क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा बाद में। तो इनका मेन कार्य ये रहता है एसेइंग हॉलमार्किंग सेंटर्स के, कि जो भी ज्वेलरी है रजिस्टर्ड ज्वेलर से वो ये लोग रिसीव करते हैं, उसको जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से पूरी अच्छी तरह से टेस्टिंग करते हैं। और अगर वो सही पाई जाती है, जितनी 916 की 916 के प्लस प्योरिटी आती है, 750 का 750 के प्लस प्योरिटी आती है, तो उसके ऊपर वो लेजर से मार्किंग करके वापस ज्वेलर को देते हैं। तो ये हमारा चार्ट डिपिक्ट करता है कि हमारी हॉलमार्किंग स्कीम कहाँ से कहाँ पहुंची है। जैसे कि मैंने बताया कि सन 2000 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो 2001 में 8 एसेइंग सेंटर्स थे और 186 ज्वेलर्स थे जो BIS के द्वारा रजिस्टर्ड थे। 2010 में अगर हम देखें तो ये संख्या बढ़ के एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या बढ़ गई 149, और ज्वेलर्स की संख्या बढ़ गई 7393। अब 2020 में आते आते, ये जुलाई 2020 तक का फिगर है, तो हमारे ज्वेलर्स की संख्या बढ़ के हो गई है 31,308, और एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर हो गए 921। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे ज्वेलर्स की संख्या बढ़ रही है, एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास कई बार कई क्षेत्रों से ये ज्वेलर्स का रिक्वेस्ट आता है कि हमारे इलाके में कोई एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, तो आप वहाँ पे सेंटर स्थापित करें ताकि हम ज्वेलरी का लाइसेंस ले पाए। लेकिन जो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ज्वेलर्स की संख्या बढ़ेगी, एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर अपने आप आएंगे। क्योंकि एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास अगर हम जाते हैं कि आप वहाँ पे सेंटर क्यों नहीं लगा रहे, तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड ज्वेलर्स ही नहीं है। अगर जब तक रजिस्टर्ड ज्वेलर्स नहीं आएंगे तो उनको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए किसी को पहल करनी पड़ेगी। अगर ज्वेलर्स वहाँ पे कहीं पे
ज़्यादा होंगे तो एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स अपने आप उस क्षेत्र में आते रहते हैं और नंबर दोनों का साथ में बढ़ता जाएगा। अभी क्योंकि जैसा कि हमारे पास जानकारी है अबाउट 5 लाख ज्वेलर्स हैं भारत में, तो जो जैसा कि आपने भी बताया कि 1 जून 2021 से ये इसकी मैंडेटरी होने की ऑर्डर्स हो चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो उससे पहले जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको रजिस्ट्रेशन करना है। और तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ज्वेलर भाई हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है तो लास्ट टाइम के लिए वेट ना करें। अभी हमारी स्कीम पूरी ऑनलाइन भी हो गई है, उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, तो आप उसको ऑनलाइन शीघ्र से शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको लास्ट मिनट पे भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो जो हमारा हॉलमार्किंग का लाइसेंस जो हम दे देते हैं, तो ये नहीं कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद हम कुछ चेक नहीं करते। इसके लिए जितने भी ऐसे हॉलमार्किंग सेंटर्स होते हैं जो भी जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इसका हम सर्वेलेंस ऑडिट करते हैं। एक साल में एक बार कम से कम हम सर्वेलेंस ऑडिट सब ऐसे सेंटर्स का करते हैं। इसके सिवाय हम रजिस्टर्ड ज्वेलर जो है वहाँ से भी सैंपल ड्रॉ करते रहते हैं। जो भी हॉलमार्क ज्वेलरी होती है वहाँ से हम सैंपल ड्रॉ करके अपनी रेफरल लैब में भेज के चेक करते रहते हैं कि जो ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि उसमें कुछ गलतियाँ आ रही हैं। इसके सिवाय बीएस का कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रमोशनल और ट्रेनिंग एक्टिविटीज में भी करते हैं, जिसमें कि सरकार द्वारा भी सहायता दी जाती है। हम समय समय पर हमारे जो 33 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया ज्वेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसमें ज्वेलर्स को पूरी प्रक्रिया बताई जाती है, बीएस हॉलमार्किंग के सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है, उसको लाइसेंस लेने के फायदे बताए जाते हैं। आर्टिसन ट्रेनिंग प्रोग्राम की जाती है, क्योंकि इसमें जो मेन जो चीज़ है हॉलमार्क ज्वेलरी में, ये जो हॉलमार्क जो ज्वेलरी बना रहे हैं वो मेन बना रहे हैं आर्टिसन। तो जब तक आर्टिसंस को पता नहीं होगा कि हॉलमार्क ज्वेलरी में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो बनाते हैं उसमें एक मेन रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें कोई भी जो सोल्डर है वो उसमें कैडमियम यूज नहीं होना चाहिए। तो ये जो सोल्डर करने वाला काम है ये सब आर्टिसन करते हैं। तो कैडमियम यूज अभी तक जैसे कि आप लोग कई लोग जो पुराने भी इस फील्ड में हैं, तो पहले केडमियम ज्वेलरी मानी जाती थी कि सबसे प्योर होती है क्योंकि उसमें कैडमियम का टाका होता है। लेकिन कैडमियम जो होता है वो उससे जो कारीगर होता है उसको कैंसर होने का खतरा होता है। इसके लिए जो हॉलमार्क ज्वेलरी होती है उसमें कैडमियम का सोल्डर यूज करना बैन है। अभी जो सोल्डर यूज करना है वो बिना कैडमियम का करना है। तो इसके लिए हम आर्टिसंस को ट्रेनिंग देते हैं कि बिना कैडमियम का सोल्डर कौन कौन सा यूज किया जा सकता है और उसकी सोल्डरिंग कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए हम आर्टिसन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हर हमारे जितने भी रीजन है उसमें समय समय पर आर्टिसन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए मांग बढ़े, लोग आके हॉलमार्क ज्वेलरी मांगेंगे तभी ज्वेलर्स बढ़ेंगे, ऐसे हॉलमार्किंग सेंटर बढ़ेंगे। और इसके साथ में ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर्स में जितने भी लोग हैं उनकी समय समय पर हम उनकी कुशलता को भी और निखारते रहते हैं, उनको और ट्रेन करते रहते हैं कि बीएस के जो नए नए रूल्स आए हैं कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसकी हम इंफॉर्मेशन जो एएनएस सेंटर है उनके पर्सनल्स को देते रहते हैं। अब मैं ब्रीफली एक छोटी सी और स्कीम भी है बीएस के गोल्ड मॉनिटरिंग स्कीम, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकार ने देखा कि भारत के घरों में बहुत सारा गोल्ड है जो कि ऐसे ही पड़ा है, जो कि कहीं यूज नहीं हो रहा, और मंदिरों में भी काफी गोल्ड है जो पड़ा रहता है, जो कि डोनेशन में आता है, कहीं यूज नहीं हो सकता। तो सरकार ने सोचा कि हम जो इतना गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम डोमेस्टिकली ये गोल्ड जो है लोगों के घरों में उससे बाहर क्यों ना निकालें। तो इसके लिए एक स्कीम चालू की है, गोल्ड मॉनिटरिंग स्कीम। इसमें ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताना चाहूँगा, इसमें जो संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना गोल्ड जो है जो घर पे पड़ा है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको आप सीपीटीसी जो है हमारे कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स, वहाँ पे अपना गोल्ड ले जा सकते हैं। वो लोग आपके सामने आपके गोल्ड की टेस्टिंग करेंगे, कि उसकी प्योरिटी की जाँच करेंगे, आपको बताएंगे कि उसके गोल्ड की प्योरिटी क्या है। तो अगर आप एग्री करते हैं उस प्योरिटी से तो वो गोल्ड रिफाइन कर दिया जाएगा, आपको 100% प्योरिटी वाला गोल्ड बना के उसको हम फिर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और बैंक से आपको समय समय पर उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आप जब गोल्ड वापस लेना चाहे तो आप गोल्ड भी वापस ले सकते हैं, लेकिन इस जो आपका जो गोल्ड घर पे आइडल पड़ा था उसकी जगह पे आपको बैंक का इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये स्कीम बड़ी अच्छी स्टार्ट की गई है सरकार द्वारा। एट प्रेजेंट अबाउट
ANS सेंटर्स भी हमारे काफ़ी सारे रिकग्नाइज हैं, CPTC जो कलेक्शन प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स की तरह ऑपरेट करने के लिए 48 ANS सेंटर्स हैं और एक ज्वेलर है जो CPTC के लिए क्वालिफाई किया गया है। अभी हमने रिसेंटली, जैसे कि मैंने बताया, भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पे नए मानक बनाते रहते हैं। एक IS 17278 बनाया है 2019, जो रिफाइंड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स फॉर गुड डिलीवरी है। जैसे कि आप लोग जो इस फील्ड में हैं, आपको पता होगा कि LBMA का एक गुड डिलीवरी का स्टैंडर्ड्स है, उसी टाइप से भारत ने भी एक IS 17278 बनाया है, जिसमें कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो एट पार हैं LBMA से। इसमें जो रिफाइंड गोल्ड बार्स है वो 995 प्योरिटी एंड अबव के अलाउड है, और इसमें डायमेंशंस और वेट भी स्पेसिफाई किए गए हैं बार्स के, कि आप कौन कौन सी प्योरिटी का कौन कौन सी वजन का बार बना सकते हैं, वो पूरे डिटेल में स्टैंडर्ड में दिया गया है। अभी जैसे कि हमारी पहले भी बात चल रही थी कि BIS ने हॉलमार्किंग स्कीम जो सन 2000 में लॉन्च करी थी, तो सन 2020 में जनवरी में ये डिसीजन लिया गया था 15 जनवरी 2020 को, कि ये स्कीम अब काफ़ी टाइम से चल रही है, तो हम इसको अब मैंडेटरी कर देते हैं। तो 15 जनवरी 2022 को डिसीजन लिया गया कि 15 जनवरी 2021 से ये स्कीम मैंडेटरी कर दी जाएगी, और वही ज्वेलर्स, सारे ज्वेलर्स जितने भी भारत में हैं, सबको BIS का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जितनी भी ज्वेलरी सेल की जाएगी भारत में वो 3 कैरेटेज की होगी, 14, 18, 22, और उसमें मैंडेटरी हॉलमार्किंग का जो निशान है, 4 निशान, वो अनिवार्य होगा। उसके सिवाय कोई भी ज्वेलरी बेची नहीं जा सकती, क्योंकि कोविड के कारण लोग अपना काम नहीं कर पा रहे थे, तो जिस स्पीड में होना चाहिए था, इसके लिए सरकार ने ये डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। अब ये जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग का इम्प्लीमेंटेशन है, अब ये 1 जून 2021 से किया जाएगा। इसके सिवाय मैं थोड़ा सा वियना कन्वेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। वियना कन्वेंशन 1972 में एक की गई थी। इसमें एक कॉमन कंट्रोल मार्क की बात की गई थी। इसका ये फायदा ये रहता है कि जैसे कि अभी जो हमारे जो इंडिया में जो अगर कोई ज्वेलर्स है वो बाहर में एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे ज्वेलरी टेस्ट की जाती है, और वहाँ पे अगर ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज्वेलरी वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर BIS, अगर इंडिया भी इसका वियना कन्वेंशन का हिस्सा बनता है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि कंट्री टू बी मेंबर, नेशनल हॉलमार्किंग स्कीम, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं और अगर हम वियना कन्वेंशन में भागीदार बनते हैं, जो कि हम अभी हम लोग इसकी तरफ कार्यसर हैं बनने के लिए, तो इसका फायदा ये रहेगा कि जिस भी, अगर जो भारत में कोई अगर कॉमन कंट्रोल मार्क एक लगा के बेचेगा और किसी भी विदेश कंट्री में जाएगा जो कि इस कन्वेंशन का हिस्सा होंगे, तो वहाँ पे वो ज्वेलरी की वापस टेस्टिंग नहीं की जाएगी। जो यहाँ पे भारत में मार्क किया जाएगा उसी को मान्य माना जाएगा, तो इससे रिजेक्शन का जो है कि वहाँ से वापस आएगा, उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तो ब्रीफली मेरा जो था BIS की हॉलमार्किंग स्कीम के बारे में, उसका मैंने थोड़ा बताया। अब मैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वेलर्स कैसे करना है, अभी जो हमारे ज्वेलर रजिस्ट्रेशन की स्कीम है ये बहुत ही सरल कर दी गई है। पहले आपको याद होगा, जो भी पहले ज्वेलर्स भाई जो रजिस्टर्ड कराया होगा उन्होंने BIS से, तो BIS का ये पूरा प्रोसेस पहले मैनुअल था। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के BIS में वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी, फिर आपको 5 दिन के अंदर लाइसेंस ग्रांट किया जाता था, और लाइसेंस आपको डाक के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब ये पूरी की पूरी जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जितनी भी पेमेंट करनी है, पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इसका फायदा ये है कि आप 10 मिनट के अंदर, आप घर पे बैठे बैठे, अपने शॉप में बैठे बैठे आप हॉलमार्किंग का लाइसेंस अपनी ज्वेलरी शॉप के लिए कर सकते हैं, और डाउनलोड भी वहीं पे कर सकते हैं। आपको BIS में ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठे बैठे अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको, जैसे कि ऊपर दिया है कि www.manakonline.in में जाके आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं। उसमें सेंटर में आपको हॉलमार्किंग दिख रहा होगा, हॉलमार्किंग में आपको क्लिक करना है, और साइड में आपको यहाँ पे एक लॉगिन का दिया हुआ है, साइड में आपको एक दिया गया है लॉगिन करने के लिए। वहाँ पे आपको जाके क्लिक करेंगे तो
तो इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इसमें आपके बड़े सिंपल सी चीजें, आपका ईमेल आईडी, कंफर्म पासवर्ड, ये सारे डिटेल्स आप डाल के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट आ गया है तो उस अकाउंट से आप इसमें लॉगिन कर लीजिए, जो भी आपने अपने लॉगिन क्रिएट किए हैं पहले वाली स्क्रीन से। और ये एप्लीकेशन फॉर ज्वेलर रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको पूरा ऑनलाइन बनना है। जितनी भी डिटेल्स इसमें दी है बड़ी सिंपल सी डिटेल्स है, नेम ऑफ फर्म, टाइप ऑफ फर्म, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, और ये सब चीज़ें। जैसे कि एक इसमें डिटेल है जिसमें कई बार ज्वेलर्स भाइयों को डिफरेंट प्रॉब्लम आती है चेक करने की इसको कैसे भरा जाए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, तो उसका भी यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि उसको कैसे फाइंड करना है। और इसको अगर आप मैप्स में भी देखेंगे तो अपने मैप्स में अगर आप क्लिक करते हैं फोन पे भी, तो उसमें भी आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड चेक कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स इसमें दी गई हैं उसको बड़ा आपको यहाँ पे सिंपल ये भरते जाना है। अगर आपके जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे बनना है, तो ये 2 पेज का फॉर्म है, इसको आपको भर के इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म ऑफ कंपनी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ वारंटी ऑफ द सिग्नेटरी। ये डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो ये 6 डॉक्यूमेंट जो हैं इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और जो डिक्लेरेशंस है इनको टिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आगे, तो आपको बताएंगे कि ये सारी फीस बननी है। तो आप ये फीस ऑनलाइन भर के, जैसे ही उसको ऑनलाइन भरेंगे तो आपका ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सेलिंग आर्टिकल विद हॉलमार्क आ जाएगा, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही आपका आ गया तो आपका हॉलमार्किंग के लिए आप रजिस्टर हो गए, और आप अपनी ज्वेलरी किसी भी BIS रिकॉग्नाइज ऐसे हॉलमार्किंग सेंटर में जाके हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर आपका लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। इसमें हम संक्षेप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म ऑफ कंपनी। अब इसमें भी प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्म ऑफ कंपनी में अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ कंपनी से भी दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी दे सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी अगर स्टेटस ऑफ फर्म है तो उसका भी आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट देंगे जो कि एज ए प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म और कंपनी। उसी टाइप से प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आप GST सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डर भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट भी दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, सेल्स लीड डीड एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। तो कोई भी एक 6 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ वारंटी में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक टाइप की आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ वारंटी आप अपलोड कर सकते हैं। एक आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपका जो दुकान है, आपका जो शॉप है, वो नियरेस्ट लैंडमार्क से कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसका एक मैप आप किसी भी A4 साइज पे बना के आप अपलोड कर सकते हैं, या गूगल मैप से भी अगर आप डाउनलोड करके उसको भी अपलोड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और 5वां जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रूफ इन रिगार्ड टू एनुअल टर्नओवर। तो इसमें आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ GST रिटर्न ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लगाना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो आप सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर टर्नओवर इफ द, अगर आपका 40 लाख से टर्नओवर कम है और आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप CA के पास से भी एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अगर आपकी फॉर्म न्यू है तो भी आप एक्सपेक्टेड टू सबमिट, आप ये बताएंगे, आप एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि हम GST रिटर्न 1 साल के बाद में आपको सबमिट करेंगे। ये हमारी फीस है जो ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। अगर ये डिपेंड करती है टर्नओवर पे। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 5 साल के लिए 7,500 रुपये फीस देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन फॉर ज्वेलर्स के लिए। अगर ये 5 करोड़ से 25 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आपको 15,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी 5 साल के। 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के लिए आपको 40,000 की फीस देनी पड़ेगी, और 100 करोड़ के ज़्यादा आपको 80,000 की फीस देनी पड़ेगी। तो ये फीस के साथ में आपको 2,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, वो भी आपको हर बार सबमिट करनी पड़ेगी। और इसमें एक कॉर्पोरेट अगर कोई लाइसेंस होते हैं कि एक किसी ज्वेलर के 5 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं तो हर एक आउटलेट के लिए उसको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। इसके सिवाय एक और भी चीज़ है कि अगर आपका गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी दोनों बेच रहे हैं
तो आपको सिर्फ अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी का लाइसेंस लिया हुआ है तो सिल्वर ज्वेलरी के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन फी जो 7,500 15,000 है वो देने की जरूरत नहीं है। केवल आपको 2,000 रुपये देनी पड़ती है एप्लीकेशन फी। अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी का लाइसेंस है तो आपको सिल्वर ज्वेलरी के लाइसेंस के लिए केवल 2,000 रुपीज में सिल्वर ज्वेलरी का भी हॉलमार्किंग का लाइसेंस आपको मिल सकता है। और वाइस वर्सा अगर सिल्वर के लिए है तो गोल्ड के लिए भी आपको 2,000 रुपीज का के ऊपर आपको मिल सकता है। खाली एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी गोल्ड या सिल्वर की। तो ये ब्रीफली मेरा जो मैंने कवर किया वो ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसके लिए है। अब एसएनए और हॉलमार्किंग सेंटर का भी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मेन जो हमारे स्टेप्स होते हैं इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एसएनए और हॉलमार्किंग सेंटर में जो भी आप ज्वेलरी बेचते हैं उसको रिसीव करके वो सेग्रीगेट की जाती है लॉट्स में। तो सबसे पहले जितनी भी ज्वेलरी आती है हर ज्वेलरी को ईच एंड एवरी ज्वेलरी को टेस्ट किया जाता है एक्सआरएफ में। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे एलिमेंट जो है कैडमियम कैडमियम अगर वहाँ पे पाया जाएगा शोल्डर पे चेक की जाएगी एक्सआरएफ द्वारा। अगर शोल्डर पे कैडमियम पाया जाएगा तो वहीं पे आपकी ज्वेलरी रिजेक्ट कर दी जाएगी और उस पर हॉलमार्क नहीं किया जाएगा। इसके सिवाय अगर इरेडियम एंड रुथेनियम भी पाया जाएगा ये भी हम एक्सआरएफ में चेक करते हैं तो ये यहाँ पे भी आपकी ज्वेलरी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो जो भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी बना रहे हैं उसमें ये चेक करना है कि कैडमियम ना हो और इरेडियम और रुथेनियम ना हो। तो ये आपको अपने कारीगर को बताना है कि ये सारी चीज़ें ज्वेलरी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सारी ज्वेलरी टेस्ट होने के बाद इसका सैम्पलिंग किया जाता है। सैम्पलिंग करने के बाद पूरे सैंपल के बाद सैंपल बनाने के बाद उसका फायर असेंग किया जाता है कि जो कि एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें क्यूपुलेशन सब करने के बाद में इसको हम पार्टिंग करते हैं नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो खाली जो फाइनल हमको मिल जाता है प्योर गोल्ड का हमको कॉर्नेट मिल जाता है। और अगर ये गोल्ड कॉर्नेट हम चेक करते हैं अगर उसकी फाइननेस जो मार्क फाइननेस है जो अगर 22 के रेट है तो 916 के ऊपर अगर पाई जाती है तो वो ऐसे मार्किंग सेंटर उसका हॉल मार्किंग कर देता है लेजर मार्किंग से। ये सारी जो प्रक्रिया है ये हमने एक फॉर्म भी दिया हुआ है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये IS 15820 के द्वारा की जाती है। इसमें भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी अब पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें भी आप मानक ऑनलाइन जाके सेम उसी टाइप से रजिस्टर करना है जैसे कि ज्वेलर्स के रजिस्टर करना है। उसमें भी आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको एक एक उसमें ऑनलाइन आपको सबमिट करते जाने हैं। ये एक अंडरटेकिंग है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है जो भी एसएनए और मार्किंग सेंटर सेटअप कर रहा है उसका कोई भी लिंकेज नहीं होना चाहिए ज्वेलरी ट्रेड के लिए। तो जैसे कि सीरियल नंबर 12 में दिया हुआ है इसमें एक डिक्लेरेशन होता है कि वी डिक्लेयर दैट द प्रोमोटर ऑफ द एएनएस सेंटर डू नॉट हैव एनी लिंकेज विद ज्वेलरी ट्रेड। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो भी एसएनए और मार्किंग सेंटर सेटअप कर रहा है उस बंदे का ज्वेलरी ट्रेड से कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए। वही आदमी इसको सेटअप कर सकता है एसएनए और मार्किंग सेंटर से जो ज्वेलरी ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो। तो ये आपको एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन के सबमिट करने के बाद में एक रिकॉग्निशन असेसमेंट किया जाता है जिसमें कि BIS के ऑफिसर्स आएंगे वो 4 मैंडेट्स के लिए चेक करेंगे। पूरी की पूरी आपकी जितनी भी टेस्ट इक्विपमेंट्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट चेक की जाती है 15820 के द्वारा। सैंपल टेस्ट किया जाता है। अगर ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इक्विपमेंट सब सही पाए जाते हैं आपका सैंपल जो टेस्ट करते हैं वो पास पाया जाता है तब आपको BIS का रिकॉग्निशन प्रदान किया जाता है। और इसके लिए भी एक रिकॉग्निशन फी और असेसमेंट फी आपको पेमेंट करनी होती है। जो रिकॉग्निशन जो ग्रांट किया जाता है वो अलग अलग कैटेगरीज में जैसे कि आप येलो गोल्ड के लिए भी कर सकते हैं वाइट गोल्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो अलग अलग स्कोप होता है रिकॉग्निशन का। और ये आपका जो एप्लीकेशन फी है जो एसएनए और मार्किंग सेंटर्स के लिए एप्लीकेशन फी है 10,000 रुपीज़ और असेसमेंट फी 5,000 रुपीज़ पर मैंडे होती है। और 60,000 जो है वो आपका रिकॉग्निशन फी है जो कि 3 साल के लिए मान्य होता है। तो ये फीस आपको देनी पड़ती है बिफोर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज एसएनए और मार्किंग सेंटर BIS रिकॉग्नाइज्ड। और इसके सिवाय हॉलमार्किंग चार्जेस जो हैं जैसे कि मैंने पहले बताया गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल्स के लिए जो एसएनए और मार्किंग सेंटर है वो ₹35 पर आर्टिकल चार्ज करते हैं। और अगर मिनिमम चार्जेस जो एक कंसाइनमेंट के लिए हैं ₹200 होता है। और सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स के लिए ₹25 पर आर्टिकल चार्ज करते हैं जो मिनिमम चार्जेस एक कंसाइनमेंट के लिए ₹150 के लिए होता है।
तो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हॉलमार्किंग डिपार्टमेंट का, मानाकालय, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आपको किसी भी टाइप की अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे कभी भी लिख सकते हैं। तो और हमारे बीएस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो बीएस की वेबसाइट में एक हॉलमार्किंग टैब दिया हुआ है। तो उस टैब में काफ़ी जानकारी दी हुई है कि इसमें अगर आप ज्वेलर रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, सिंग हॉलमार्किंग सेंटर रजिस्टर होना चाहते हैं, डिफाइन रजिस्टर होना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल प्रक्रिया उसके ऊपर दी गई है। तो दैट इज ऑल जो मैं बताना चाह रहा था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द पेशेंट हियरिंग। और इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर देन आई थिंक वी कैन टेक इट अप नाउ। जी सर, संजीव सर, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पास में आए हुए हैं, तो हम आपसे थोड़ा उस पे जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली आपने कहा कुछ प्रश्न तो आए थे पहले ही जब आप प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उसके आंसर आपने अपने इस प्रेजेंटेशन के दौरान दे दिया जहाँ पे फीस और इस तरह की बातें थी। लेकिन सर एक दो चीजें ऐसे हैं, छोटे दुकान, आप जानते हैं कि ज्वेलरी में छोटे बड़े हर प्रकार के लोग हैं, तो छोटे दुकानदारों को ये पूरा ट्रैकिंग रखना, जहाँ पर कि एक या दो आदमी की पूरी टीम होती है, उनको थोड़ा उसमें चैलेंजेस है कि हॉलमार्किंग का रिकॉर्ड रखना और उसके लिए पूरा ट्रैकिंग रखना, उनको थोड़ा चैलेंज है। उसपे कुछ आप अपना सलाह दे सकते हैं सर? सर उसमें कोई ट्रैकिंग रखने की जरूरत नहीं है। जब जो भी रजिस्टर्ड ज्वेलर होगा तो वो जब वो टेस्टिंग करने के लिए हॉलमार्किंग सेंटर में भेजेगा तो एक फॉर्म होता है। तो उस फॉर्म में वो लिखता है कि मेरी कितनी ज्वेलरी जा रही है टेस्टिंग में, वही फॉर्म वहाँ से वापस आता है। तो अगर वो फॉर्म खाली अपने पास रखते हैं तो उससे ही पूरा उनके पास ट्रैक रहता है कि कौन सी ज्वेलरी गई है, कौन से सेंग सेंटर में गई है, कहाँ कितनी ज्वेलरी टेस्ट होकर आई है। तो अलग से कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती। उस फॉर्म को रखेंगे तो उसके अंदर भी पूरा डेटा मेंटेन हो जाता है। ओके सर। सर एक चीज और भी है कि ये जो हॉलमार्किंग सेंटर्स है, डेफिनेटली आपने कहा कि ग्रेजुअली जब लोगों की क्राउड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो डेवलप होते चले जाएंगे। तो आज भी जो संख्या है पूरे भारत में काफी कम है हॉलमार्किंग सेंटर्स की। तो सरकार की या डिपार्टमेंट की कोई ऐसी योजना है कि जो बड़े कस्बे हैं या जो बड़े सिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस तरह से कोई योजना है सरकार की कि जल्दी ही हॉलमार्किंग सेंटर्स जब तक मैंडेटरी होने से पहले और जगह पे खुल सके? इसमें सर मैं बताना चाहूँगा, अभी 15 जुलाई को हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट किया था बीएस की वेबसाइट पे। तो बीएस की एक स्कीम है जो सेंट्रल असिस्टेंस प्रदान करते हैं कि इसमें 30 से 50% सब्सिडी दी जाती है बीएस को एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर्स में उन डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप करने के लिए जहाँ पे कि अभी कोई एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। तो ये हमारा 15 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसका 15 सितंबर तक लास्ट डेट थी। और इसमें मैं बता दूंगा, इसमें हमारे पास 51 एप्लीकेशंस आई हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप करने के लिए जहाँ पे कि अभी हमारे पास कोई एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं है। तो हर साल ये बीएस की एक स्कीम आती रहती है, तो हम इसमें 30 to 50% सब्सिडी भी देते हैं। और इसके साथ में इनसे उन डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ावा मिलता है कि जहाँ पे एट प्रेजेंट कोई भी एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। सर इसमें एक प्रश्न और था कि कुछ कंट्रोल हॉलमार्किंग सेंटर्स पे जो हॉलमार्किंग हो रही है उस पे कुछ चेक पॉइंट्स है कि लोग जो वहां से हॉलमार्किंग करवा रहे हैं वो प्रॉपर, वो कोई उसमें धांधली ना हो, कुछ इस तरह की चीजें उस पे कोई? वो उसके लिए भी जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने 2 मॉड्यूल जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वेलर्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर्स तो लॉन्च कर दिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी काम एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर्स में किया जा रहा है उसको भी पूरा डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं बीआईएस। और इसके साथ में हमारा जो मकसद ये है कि हर ज्वेलरी पे एक ट्रेसेबिलिटी कोड करने की हमारी मंशा है, ताकि हमारा ट्रैक हो सके वो ज्वेलरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और एंड कस्टमर तक पूरी ट्रेसेबिलिटी एक मेंटेन होगी। तो एक बार ये जो हमारा प्रोसीजर जो है, हमने अभी इसका सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो एक बार ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है तो हमारी पूरी ट्रेसेबिलिटी कोड मेंटेन रहेगी और इससे डुप्लीकेशन भी बच जाएगा और एसेंग हॉलमार्किंग सेंटर्स में हमारा कंट्रोल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसको पता होगा कि अभी ये ज्वेलरी डुप्लीकेशन नहीं हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और हम पूरा ट्रैक कर सकते हैं राइट फ्रॉम द जो कहाँ से ज्वेलरी ओरिजिनेट हुई है अप टू द एंड कस्टमर, पूरी एक ट्रेसेबिलिटी चेन मेंटेन की जाए। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज अलाउ अस टू हॉलमार्किंग ऑन प्लैटिनम ज्वेलरी आल्सो। सरकार की कोई योजना है सर जल्दी?
सर अभी अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, अगर हमारे ज्वेलर बंधु इस पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड तो है, प्लेटिनम का भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो हम कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट कुछ नहीं हुआ इसके बाद। और सर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए जैसे तमाम डिस्काउंट्स और तमाम सब्सिडीज अन सेक्टर्स में अवेलेबल है, तो हॉल मार्किंग के लिए भी एमएसएमई के लिए कुछ इस तरह की स्कीम्स है कि जहां पे उनको रियायती दर पे हॉल मार्किंग की जा सके, तो छोटे छोटे कारीगर और इस सब के लिए। तो जैसा आपने बताया कि जो हमारे हॉलमार्किंग के जो रजिस्ट्रेशन जो ज्वेलर्स के लिए हैं, तो उसमें वो टर्नओवर पे है। जिसका अगर 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो उसको सिर्फ 7,500 रुपये 5 साल के लिए देने पड़ते हैं। 5 से 25 है तो उसको 15,000 है। तो इसके हिसाब से अलग अलग हमने वो बनाई हुई हैं, स्लैब्स बनाई हुई हैं। तो जो सबसे कम लेवल के ज्वेलर्स हैं उनको सिर्फ 7,500 रुपये देने हैं 5 साल के लिए। सर एक और क्वेश्चन है, कैन द ज्वेलर्स एसोसिएशन कैन स्टार्ट देयर हॉलमार्क सेंटर फॉर देयर मेंबर्स? नो, बिकॉज उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि अगर एसोसिएशन कर रहा है तो वो अपने ज्वेलर्स का कैसे सेल करेगा। इसके लिए वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी जरूरी है। We also need hallmarking for export. अभी एट प्रेजेंट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट में तो आपको जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको आपको वहाँ के लॉज में जो है उसके हिसाब से करना है। जो बीआईएस का मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑर्डर भी आया है उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इंपोर्ट्स पे रहेगा, जो इंपोर्ट होगी वो मैंडेटरी हॉलमार्क करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सर इसमें जो विभाग है आपका छोटे छोटे कस्बों में कुछ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है कि जहां पार्टिसिपेंट समझ सके, जान सके हॉलमार्किंग के बारे में, ऐसी कोई योजना आपकी चल रही है क्या? ये जैसे कि मैंने बताया था बीच में कि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारे ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं, हर स्टेट में ब्रांचेस हैं। तो हर स्टेट बीच बीच में हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हर सिटी में, हर कस्बे में जाके कंज्यूमर अवेयरनेस भी करते हैं, ज्वेलर अवेयरनेस भी करते हैं, आर्टिसन प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ये समय समय पे हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। और अगर कोई ज्वेलर एसोसिएशन चाहता है कि उनके एरिया में प्रोग्राम किया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे जो मैंने ईमेल आईडी दिया है वहाँ पे आप कृपया लिखिए, तो हम इमीडिएटली उस एरिया में आपको जो भी जहाँ पे भी आप करवाना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में करवाना चाहते हैं, वहाँ पे हम आपका ये प्रोग्राम करने के लिए तैयार। एक और क्वेश्चन है, इफ वी गेट जॉब वर्क फ्रॉम कारीगर्स डन, where can they go, how do they avail of hallmarking? मैं रिपीट करूं? नहीं, जॉब वर्क तो वैसे भी आप करवा ही रहे हैं, मोस्टली सारे ज्वेलर्स बाहर से करवाते हैं। तो बाद में ये, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया 4 चिन्ह होते हैं, चौथा चिन्ह जो है वो ज्वेलर का है। तो ये जॉब वर्क करवा के जब वो ज्वेलर ज्वेलरी लेगा उसके बाद में उसको सेंगे सेंटर में जाके टेस्ट कराना है। तो वो तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ज्वेलर की बन जाती है कि उसको टेस्ट करा के, क्योंकि जो मार्क रहेगा वो ज्वेलर का ही रहेगा उसमें। एक क्वेश्चन और है, हाउ डू अ विलेज गोल्ड स्मिथ अप्लाई फॉर हॉलमार्किंग लाइसेंस? प्रक्रिया तो सेम ही है, अब तो पूरा ऑनलाइन है, एनीबडी कैन अप्लाई। अगर उसके पास जीएसटी नहीं है तो वो सीए सर्टिफिकेट भी दे सकता है। तो ऑनलाइन तो किसी भी जगह पे बैठ के अप्लाई किया जा सकता है। आजकल तो गांव गांव में इंटरनेट पहुंच ही गया है। तो इवन आप मोबाइल से भी उसको लिंक कर से आप उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप उसको कर सकते हैं। सर जैसे आपने कहा कि जो 40 लाख के अंदर हैं और जो जीएसटी के परव्यू में नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सीए सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देना है। और अगर वो नेक्स्ट ईयर तक भी 40 लाख के परव्यू तक नहीं पहुंचे तो उन्हें क्या करना होगा? तो वो सीए सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। सीए सर्टिफिकेट मान लेगा उनका। तो अब मुझे लगता है सर काफी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं। हमारी भी समय की जो मर्यादा है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। और संजीव जी, एक क्वेश्चन था मेरा। यस सर। कि हाँ, अगर एमपी में कोई प्रोग्राम कराना हो कैपेसिटी बिल्डिंग का आर्टिसंस के लिए जैसे, तो हमें दिल्ली में आपसे कांटेक्ट करना होगा या बीआईएस भोपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं? सर कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो। अगर आप यहाँ पे करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो करना भोपाल ही करेंगे, ओके भोपाल ब्रांच ऑफिस, तो वो किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं, नॉट इशू। ओके ओके ओके।
तो सर मुझे लगता है कि काफी जो प्रश्न आए थे आपने उसके समाधान किए हैं, लेकिन संजीव सर में चूंकि इस बार जो हमने अभी वेबिनार किया ये मॉर्निंग का समय था, हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत थोड़ा क्रिटिकल समय होता है, तो एक बार हम आपसे चाहेंगे कि अगर हमें इवनिंग में थोड़ा समय आप दे पाएंगे तो इस प्रोग्राम को सर्टेन जब हमारे पास में स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी संख्या में ज्वेलर्स हैं जो कि अपनी अभी जो सीजन आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त जुड़ नहीं पाए हैं। उनकी रिक्वेस्ट आए हैं हमारे पास में कि सर थोड़ा टाइम बदले, लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने टाइम में कुछ चेंजेस नहीं कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि सर एक बार या दो बार हमें जरूरत पड़े तो आप अपना समय दें और अलग टाइम पे इवनिंग में, जिससे हम इस कार्यक्रम को कर पाए। हाँ ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा तो वी कैन होल्ड इन इवनिंग आल्सो, कोई इश्यू नहीं। जी यहाँ पे एक प्रश्न था, लेकिन मुझे लगता है तो DGIPC के लिए DGIPC कमिंग अप विद CFC कैन दे ऑफर हॉलमार्किंग टू, डेफिनेटली हम उस पे काम कर रहे हैं। जहां भी CFC बन रही है वहां पे हॉलमार्किंग सेंटर्स हमारे होंगे। जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा वो भी हमारा एक्शन प्लान का पार्ट है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ पूछने का आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके मन में है क्वेश्चन पूछे, या अगले वेबिनार्स में आप हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जो अब तक जो प्रश्न आए हैं सर ने उनके आंसर दिए हैं और मुझे लगता है कि उस आंसर से आप सब लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। और जहां भी आपको लगे कि अन्य प्रश्न रह गए हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, जिससे हम अगले वेबिनार के पूर्व वो चीजें आप सर से हम शेयर करेंगे और मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का समाधान आपको प्राप्त होगा। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का जो भी ज्वेलर्स बंधु यहाँ जुड़े हैं, जो भी ज्वेलरी कम्युनिटी से जुड़े हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूँ DGIPC की तरफ से। संजीव सर आपका प्रेजेंटेशन और आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी रही, लोगों के काफी उसकी प्रतिक्रिया हमको मिल रही है, हम आपके बहुत आभारी हैं। मोहानी सर हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आपका इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहे, हम आपके साथ भी कार्यक्रम करते रहे। तो मैं मिथिलेश पांडे अपनी कलीग मृणाली के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।